Hello student, today I am teaching you social science for class 8. This is your chapter 8, disaster management, man-made disasters. So in previous video I taught you about disaster management and introduction to natural disaster. So previously I taught you about how the disasters comes naturally, and now in this chapter 8 I would like to explain you about the man-made disasters, okay, which are in our hand to control. So the following topics we will cover in this chapter, that is first meaning of man-made disaster, then types of man-made disaster, road accidents, rail accidents, air accidents, fire, terrorist attacks, etc. So man-made disaster that are experienced today are not totally natural. अगर हम देखें तो disasters सिर्फ naturally ही आकर नहीं होते. Most of the disasters that we face today, climatic change, global warming, and desertification, soil erosion, fire, terrorist attack, railroad accident, etc. are included by human activities. तो ये सारी human activities के द्वारा होती हैं. They do not only affect human beings but plants, animals, and microorganisms also. So man's progress in science and technology has brought about large scale changes in the world. तो मैन की प्रोग्रेस के साथ साथ बहुत से चेंजेस भी वर्ल्ड में देखने को मिले. So these disasters are caused due to human negligence, deliberate activities of an individual or a group of people. तो पीपल्स की नेग्लिजेंस के थ्रू और इररिस्पॉन्सिबिलिटीज के थ्रू ये मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं. Human made disaster contribute to loss of life and human suffering and damage to the economy of a country and its environment. ठीक है? So as the natural disasters destroy the nature, the life, the property, so same as through the man-made disaster also suffer loss of the life, property, environment, country of the economy, everything. Now road accident. First of all, we will discuss about road accident. So every day many people die due to road and rail accident in India. The most common is road accident, which has resulted in injuries to several thousands of people in India every year. So these accidents are caused due to disobeying the traffic rules, overspeeding the vehicles, drunken driving, overtaking the vehicles, bad roads, stray animals. So all these are the causes behind the road accident, which is totally man-made. ठीक है? जब हम ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते, हम ओवर स्पीड में अपने व्हीकल्स को रन करते हैं, ड्रिंक करके हम ड्राइविंग करते हैं, या व्हीकल्स को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, रोड का कंडीशन अच्छा नहीं है, जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनके कारण कोई एक्सीडेंट होता है. सो ऑल दीज एक्सीडेंट्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ road accident and which is totally man-made. In India, about 80,000 people are killed in road accident every year. तो इंडिया की अगर हम बात करें 80,000 people every year be killed by road accident, especially in recent year when the numbers of road accident have increased beyond proportion. So the road network is not significant for the movement of people and goods. The number of vehicles have also increased over the years. सिर्फ एक्सीडेंट ही इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, इनका मेन कारण व्हीकल्स का भी रोड में ज़्यादा बढ़ना है. समटाइम द पुअर कंडीशन एंड द रोड आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज डेडली एक्सीडेंट्स. तो कभी कभी रोड जो अच्छी नहीं है, रोड का कंडीशन इज नॉट वेल, सो ये भी कारण रहते हैं. सो रोड safety education is very essential even at the school level to create awareness among the children about road safety rules. तो बहुत ज़रूरी है कि हम essential education childrens को provide करें about the road safety education so that the childrens would very much clear about the safety rules. In India, we observe the Road Safety Week every year to include awareness strong
among the children through painting competition, essay writing, quiz competition, debate, etc. तो टाइम टू टाइम रोड सेफ्टी वीक भी इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें राइटिंग, ऐसे कंपटीशन, डिबेट्स कराए जाते हैं ताकि चिल्ड्रंस को अवेयर हो अबाउट हाउ दे टैकल द सिचुएशन और हाउ दे must follow the rule and regulation. So we need to follow certain precautions while using the roads for our safety. So some of the safety tips are as follows. Don't drive the vehicles without proper license or before the age of 18. तो हमें क्या क्या रूल फॉलो करने हैं? We should not without vehicle we should not run our vehicles. Okay, always use zebra crossing to cross the road. हमें zebra crossing का use करना है while we have to cross the road. Be familiar with the road signals and follow them. Wear helmets while we are driving. We must have to wear the helmet. Obey the traffic rules. Do not run on the road or put your body out while traveling in a bus or a vehicle. Do not make a noise or talk on mobile phone while driving. ठीक है. Avoid drunken driving. जब drink people करते हैं तो उस टाइम पे ड्राइविंग करते हैं, जो कि बिल्कुल प्रोहिबिट करना चाहिए. ओवर स्पीडिंग ऑफ व्हीकल्स इसके कारण भी होते हैं, हमें ओवर स्पीड नहीं करना. सो द गवर्नमेंट शुड मेंटेन द रोड प्रॉपरली, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन टू प्रोवाइड सेफ्टी ड्राइविंग टू द रोड यूजर्स. स्पेशली गवर्नमेंट रेनी सीजन्स में पीपल्स को सेफ्टी रूल्स प्रोवाइड करे, सेफ्टी किट्स प्रोवाइड करे, सो दैट द रोड एक्सीडेंट्स वुड नॉट बी अकर, स्पेशली इन रेनी सीजन्स. Now rail accident. So rail transport in India carries the largest number of passengers and goods over long distance. तो रेल ट्रांसपोर्ट इंडिया का एक ऐसा मीन है जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल एक साथ ट्रांसफ़र करते हैं, या हम कह सकते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हैं, नॉट ओनली द पैसेंजर एज वेल एज द गुड्स ऑल्सो. सो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एज इट मेक्स सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री. तो हमारी इंडिया की कंट्री को, इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए रेल ट्रांसपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो इंडिया हैज़ द 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड, बट द नंबर ऑफ रेल एक्सीडेंट हैज़ इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स. लेकिन जो रेल एक्सीडेंट्स हैं वो भी इंक्रीज होते जा रहे हैं. सो द कॉमन कॉज ऑफ रेल एक्सीडेंट्स आर डिलेमेंट्स ऑफ ट्रेन. एक तो डिले, लेक ऑफ प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द ट्रैक मेंटेन नहीं होते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज हो जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनफ्लेमेबल लिक्विड लाइक केरोसिन, पेट्रोल, डिफेक्ट इन द सीलिंग सिस्टम. ठीक है. तो दीज एक्सीडेंट्स रिजल्ट्स इन लार्ज स्केल डेथ ऑफ द पीपल, इंजरीज ऑफ ह्यूज लॉस फॉर द रेलवे. तो इससे बहुत ज़्यादा पीपल्स को सफ़र करना पड़ता है फ्रॉम देयर लाइफ, और बहुत से पीपल इसमें इंजरी हो जाते हैं, एज वेल एज रेल को भी नुकसान होता है. सो टू अवॉइड द रेल एक्सीडेंट वी शुड फॉलो द फॉलोइंग सेफ्टी टिप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑबे द सिग्नल व्हाइल क्रॉसिंग द रेलवे लाइन्स. हमें जब हम क्रॉसिंग लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, वी मस्ट हैव टू बी फॉलो द सिग्नल्स. डोंट ट्राई टू गेट अंडरनीथ द सिग्नल बैरियर्स टू क्रॉस द रेलवे लाइन. हमें रेलवे क्रॉसिंग लाइन को ज़बरदस्ती क्रॉस नहीं करना, उसके सिग्नल को नोटिस करना है. डोंट कैरी फ्लेमेबल मटेरियल्स. हमें उन चीज़ों को अपने साथ कैरी नहीं करना जो कि आग, फायर अकर करने का चांसेस हैं. डोंट ट्राई टू बोर्ड अ मूविंग ट्रेन ऑन द लीन आउटसाइड. हमें चलती हुई ट्रेन से कोई भी अपना बॉडी का पार्ट बाहर को नहीं निकालना है. डोंट स्मोक इनसाइड द ट्रेन. डोंट पुल द चेन अननेसेसरली. ट्रेन की चेन को नहीं खींचना है विदाउट एनी रीज़न. डोंट जंप फ्रॉम और गेट डाउन अ मूविंग ट्रेन. मूविंग ट्रेन से हमें जंप नहीं करना. ठीक है. सो ऑल दीज आर द प्रिकॉशन, सेफ्टी टिप्स विच वी हैव टू बी मेंटेन while we are taking the use of railways. Okay. Now next, air accident. So air accident have also become common nowadays due to changing weather condition, technical failures, fire, hijackings, bomb scares, etc. तो एयर एक्सीडेंट भी ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से होते हैं. वेदर का कंडीशन खराब है, कोई टेक्निकल फेलियर हो गया, हाईजैकिंग हो गया, आग लग गई, बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया. टू अवॉइड एयर एक्सीडेंट वी नीड टू फॉलो सम सेफ्टी टिप्स. तो एयर एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें कुछ सेफ्टी टिप्स को फॉलो करना है, जैसे पे अटेंशन टू द फ्लाइट क्रू.
सेफ्टी डिमॉन्स्ट्रेशन, सबसे पहले हमें फ्लाइट को फ्लाई करने से पहले वी हैव टू पे अटेंशन, जो भी हमारा क्रू हमको बता रहा है उसको हमें सुनना है ध्यान से. रीड द सेफ्टी ब्रीफिंग कार्ड्स कैप्ट इन द सीट पॉकेट. जो सेफ्टी कार्ड्स होते हैं जो ब्रीफिंग करते हैं, हमें सेफ्टी पॉइंट्स बताते हैं, उसको हमें रीड आउट करना है, अपने पॉकेट के साइड में रखना है. लोकेट द नियरेस्ट सेफ्टी इमरजेंसी एग्जिस्ट एंड लर्न हाउ टू ओपन इट इन केस ऑफ इमरजेंसी. हमें सेफ्टी के लिए नियरेस्ट एग्जिस्ट पर्टिकुलर एरिया में बैठना है और हमें सीखना है कि किस तरह से हमें इमरजेंसी किट उसको विंडो को ओपन करना है एट द टाइम ऑफ एनी मिस हैपनिंग. ऑलवेज कीप द सीट बेल्ट फास्टन्स व्हेन यू आर सिटिंग. और जब भी हम उसमें बैठे हैं वी मस्ट हैव टू बी फास्टन अवर बेल्ट, हमें बेल्ट को पहन के बैठना है. ओके. नाउ इन केस ऑफ एन एयर एक्सीडेंट, अगर एयर एक्सीडेंट होता है, हाउ वी हैव टू बी control all the things. We should not be panic first of all. We should save ourselves and save to other also. Don't panic. Stay calm. Listen to the instruction given by the crew members. जो भी crew members आपको instruction दे रहे हैं वो हमें ध्यान से सुनने हैं. And then before opening the emergency exit, yourself look outside the window. Emergency window को खोलने से पहले हमें बाहर देखना है. In case of fire outside the door, don't open it or a flame may spread into the cabin. अगर हम window without looking outside we open, then the fire, if the fire is occurring outside, it would come in a cabin. So smoke always raises, so try to stay down if there is a smoke in a cabin. अगर cabin में smoke है तो आप अपने को नीचे खड़े नहीं होंगे, ठीक है. Follow the path of emergency light. Amendment on the floor. Cover your nose and mouth with a cloth. तो हमें अपने माउथ को क्लॉथ से क्लोज करके शांति बनाए रखनी है. ओके. सो दिस इज अबाउट एयर एक्सीडेंट. ओके. नाउ फायर. सो फायर इज कॉज्ड ड्यू टू combustions of wood or paper or from inflammable liquids like petroleum, oil, solvents or inflammable gases like cooking gas, methane, etc. So fire in industry or high-rise buildings are often caused due to electric शॉर्ट सर्किट. तो फायर बेसिकली जो अकर होती है वो किसी लिक्विड के जलने के कारण, जिसमें पेट्रोलियम, ऑयल, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, कुकिंग गैस आ गई जिसमें मीथेन है, ठीक है, या शॉर्ट सर्किट होता है इलेक्ट्रिक का. सो द थ्रेट ऑफ द फायर इज़ वेरी हाई बिल्डिंग. तो ज़्यादा जो खर्चा रहता है, ज़्यादा जो नुकसान रहता है वो जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके साथ रहता है. हैज़ बिन इंक्रीज ओवर द ईयर, जो कि काफ़ी कई सालों से बढ़ता ही गया है. सो फायर इन द Upper Cinema Hall, Delhi occurred in 1997, killing 59 people and injured more than 200. तो अगर हम पुराना ये रिकॉर्ड देखें तो ऊपर सिनेमा हॉल जो दिल्ली में था, ये 1997 की बात हो गई, जिसमें 59 पीपल इसमें इंजर्ड हुए, ठीक है, एंड मोर देन 200 पीपल, उसमें 19 पीपल तो डेथ हो गए और 200 पीपल उसमें इंजर्ड हुए. सो इन 2004 द Kumbakonam fire tragedy took place in the village school in Tamil Nadu where 93 children were cheered to death. तो तमिलनाडु में भी एक छोटे से विलेज में स्कूल में फायर अकर हुई जिसकी वजह से 93 चिल्ड्रंस डेथ हो गई. द मेन कॉज ऑफ द फायर, द लेक ऑफ अवेयरनेस अमंग द चिल्ड्रन and the teachers' lack of preparedness. Kitchen located close to the classroom for the preparation of midday meal for the school children, etc. ठीक है. So added to the death toll. तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो टीचर थे, जो चिल्ड्रंस थे, उनको फायर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, हाउ दे टैकल द पर्टिकुलर सिचुएशन. सो जो उनका क्लासरूम था वो बिल्कुल उनके किचन से अटैच था. तो किचन में मिड डे मील बन रहा था बच्चों के लिए, तो वहाँ पे फायर ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से 93 चिल्ड्रंस वर चेयर्स टू डेथ. सो इन द सेम ईयर इन द मैरिज हॉल, उसी सेम ईयर में ही मैरिज हॉल में तमिलनाडु में सेम फायर ब्रोक आउट किलिंग 62 पीपल एंड मेनी पीपल्स वर इंजर्ड. तो 62 पीपल ने अपनी जान गंवाई और मेनी ऑफ द पीपल्स वर इंजर्ड. सो हीट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेडियो फ्लैश गन set fire in a decorative material in the marriage pandal. There was a stampede as the staircase
was never and people could not move out to save themselves. ठीक है, तो उसी तरह एक पर्टिकुलर मैरिज डेकोरेटिव मटेरियल्स के जलने के कारण भी नुकसान हुआ. ठीक है. Now we should follow these safety tips in case of fire breakout. So the safety tips we will study in next video. So thank you and have a nice day.